Hello friends, welcome to my YouTube class. We are going through the chapter excretory product and their elimination, and this is the last part of this chapter. Today in this video we are going to complete this chapter, and in today's video we will cover counter current mechanism, then micturition, and then disorders of excretory system. So in today's video we will go through these three topics. The first is counter current mechanism. In higher vertebrates, to make urine more concentrated and to absorb more and more water from the glomerular filtrate, a special mechanism known as counter current mechanism is present. Henle's loop and vasa recta plays an important role in this mechanism. The flow of filtrate in Henle's loop is in opposite direction. This forms counter current. The flow of blood within the two limbs of vasa recta is also in opposite direction, which also forms counter current mechanism. The gradient of increasing hyperosmolarity of medullary istrium is maintained by a counter current mechanism and the proximity between Henle's loop and vasa recta. This is mainly maintained by to and fro movement of NaCl and urea. The transport of these substances are facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta. तो ये जो अरेंजमेंट है इसको पहले ध्यान से देखें आप लोग डायग्राम में. दिस विल मेक यू क्लियर व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म. तो इसमें जो पहला फिगर है दैट इज हेनलीज लूप. तो हेनलीज लूप के एक लूप में मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट डाउनवर्ड है, तो वहीं दूसरी तरफ मूवमेंट ऑफ फिल्ट्रेट अपवर्ड है. मीन्स दैट इज टोटली अपोजिट इन डायरेक्शन. तो दिस इज फॉर्मिंग counter current. Counter current helps in release and absorption of useful materials from the glomerulus filtrate. In the same way vasa recta दूसरा हाफ फिगर है, उसमें भी मूवमेंट ऑफ ब्लड एक में डाउनवर्ड है दूसरे में अपवर्ड है. तो ये भी काउंटर करंट मैकेनिज्म फॉलो करता है, जिससे इंडस्ट्रियल फ्लूइड से जो यूज़फुल मटेरियल है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल है या जो बॉडी में रीअब्जॉर्ब होना है वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है. तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव होने के चलते एक ऑस्मोलैरिटी बनता है, जिससे एब्जॉर्प्शन और रीअब्जॉर्प्शन का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी वे में चला जाता है, जिसके चलते जो भी कंसंट्रेशन चाहिए हमारे यूरिन का वो यहाँ पे बनता है. तो दिस हाउ वी से कि काउंटर करंट मैकेनिज्म हेल्प्स इन मेकिंग द यूरिन कंसनट्रेटेड. और जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो कि आवर बॉडी इज़ फॉर्मिंग 180 लीटर ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट पर डे, बट आउट ऑफ दैट 180 लीटर वी आर पासिंग आउट ओनली 1.5 लीटर ऑफ यूरिन पर डे. तो रेस्ट amount of the glomerular filtrate is here reabsorbed by the body to maintain the osmolarity of the body, और यू कैन से osmoregulation. और जो भी बॉडी की रिक्वायरमेंट है वो चाहे NaCl की हो या H2O की हो, वो सब कुछ बैलेंस यहीं से होता है, और जो यूरिन है वो बिल्कुल कंसनट्रेटेड फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है. Now counter current mechanism. Counter current mechanism involves counter current multiplication by Henle's loop and counter current exchange by vasa recta. तो एक्चुअली में जैसा कि मैंने बताया काउंटर करंट मैकेनिज्म दोनों जगह चलता है, एक तो हेनलीज लूप के असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप में, और दूसरा वासा रेक्टा में भी. NaCl is transported out of the ascending limb of Henle's loop. This enter in the descending limb of the vasa recta. तो NaCl जब असेंडिंग लूप ऑफ हेनलीज में मूव कर रहा है तो उस समय वहाँ से NaCl बाहर आ रहा है,
और उसी के बगल में जो वासा रेक्टा है वहाँ पे NaCl रीअब्जॉर्ब हो रहा है इन द ब्लड. NaCl is returned to the medullary striatum, the ascending part of the vasa, but contrarily the water diffuses into the blood of ascending limb vasa recta and is carried away from by the general blood circulation. और यहाँ पे जो वासा रेक्टा है वो मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब करके फिर से हमारे जनरल ब्लड सर्कुलेशन में भेज देता है ताकि बॉडी में वाटर की कमी ना हो. Permeability of urea is found only in the deeper parts of the thin ascending limb of the loop and collecting duct. तो यूरिया के लिए परमेबिलिटी हमारे असेंडिंग लूप में मिलता है बट दैट इज एट द डीपर पार्ट. Urea diffuses out of the collecting duct and enters into the thin ascending limb. A certain amount of urea recycled in this way is trapped in medullary interstitium by the collecting tubules. Thus, collecting tubules plays important role in the process. The counter current mechanism helps in the maintenance of concentration gradient in the medullary interstitium. तो जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, जो भी फ्लूइड हमारे किडनी में प्रेजेंट है उसमें कंसंट्रेशन को मेंटेन करके रखता है. प्रेजेंस ऑफ सच ग्रेडियंट हेल्प इन इजी पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन. तो इस तरह से NaCl को रीअब्जॉर्ब करना, यूरिया को रीअब्जॉर्ब करना और फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब करना और फाइनली कंसनट्रेटेड यूरिन बनाना, दिस ऑल हैपन्स ड्यू टू काउंटर करंट मैकेनिज्म which are going on inside the Henle's loop and vasa recta. Now regulation of kidney function. हमारे किडनी के फंक्शन को कौन कौन रेगुलेट करता है वो देखते हैं. द फंक्शन ऑफ किडनी इज मेनली रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म. और ये हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म में हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, JGA इन्वॉल्व है और हार्ट इन्वॉल्व है. मतलब ये 3 ऑर्गन्स हैं जो अपने हार्मोन से किडनी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं. तो पहले हाइपोथैलेमस देख लेते हैं. तो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है ADH जिसको बोलते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन. एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन या बोलते हैं वैसोप्रेसिन. तो ये रेगुलेट करता है वाटर का रीएब्जॉर्प्शन. यहाँ नीचे लिखा है ADH रिलीजेस. अगर ADH रिलीज हो रहा है तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन DCT पे बढ़ जाता है और इट इंक्रीजेज द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम. इसके बॉडी का फ्लूइड बढ़ जाता है. और अगर दूसरी तरीके से देखें तो अगर हमारी बॉडी में पूरा तरह से वाटर है, पूरा फ्लूइड मेंटेन्ड है, तो एट दैट टाइम क्या होगा, एट दैट टाइम जो ADH का रिलीज है वो स्टॉप हो जाएगा और जिससे क्या होगा कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिन हम पास आउट करेंगे. तो दिस हाउ हाइपोथैलेमस ADH के हेल्प से या तो कंसनट्रेटेड यूरिन पास आउट करने में हेल्प करता है या तो डाइल्यूट यूरिन पास आउट करने में हेल्प करता है. इसको हम दूसरे तरीके से देख लेते हैं कि समर सीजन में जनरली क्या होता है कि हमारे बॉडी को मैक्सिमम वाटर चाहिए होता है. तो उस समय ADH रिलीज होता है. ADH के रिलीज होने से क्या होगा, जो हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से मैक्सिमम वाटर रीअब्सॉर्ब कर लेता है बॉडी, क्योंकि समर सीजन में बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए. तो हम समर सीजन में देखते हैं कि वी आर पासिंग आउट कंसनट्रेटेड यूरिन एंड इन लेस फ्रीक्वेंसी. मतलब दिन में बहुत कम बार हम लोग टॉयलेट जाते हैं और बहुत कम अमाउंट ऑफ टॉयलेट पास आउट करते हैं. बट वहीं पे विंटर सीजन में क्या होता है, क्योंकि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, स्वेटिंग हमारी बॉडी से नहीं हो रही होती है, तो इसलिए ADH का सिक्रेशन हाइपोथैलेमस स्टॉप कर देता है, जिसके चलते हम बहुत ही डाइल्यूट यूरिन पास आउट करते हैं और बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूरिन पास आउट करते हैं. तो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ ADH रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस इन किडनी फंक्शंस कंट्रोल. दूसरा है JGA. तो JGA का फुल फॉर्म है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus और JGA रिलीजेज एंजाइम रेनिन. JGA एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं रेनिन. रेनिन कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिनोजन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 एंड एंजियोटेंसिन 2. दिस मैकेनिज्म इज जनरली ऑल्सो नोन एज रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म. और इससे क्या इफेक्ट होता है रेनिन से, तो इट रेजेस BP. रेनिन का सिक्रेशन जब होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और ब्लड प्रेशर अगर इंक्रीज हो गया तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है बढ़ जाएगा, जिससे हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का अमाउंट बढ़ जाएगा. इट एक्टिवेट्स द एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन और एल्डोस्टेरोन कॉजेज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द DCT. दिस हाउ JGA ऑल्सो कंट्रोल्स द किडनी फंक्शन. नाउ हार्ट.
तो हार्ट में है ANF. NF stands for atrial natriuretic factor produced by atria of heart. When blood volume decreases, this causes vasodilation and thereby decreases the blood pressure. ANF also inhibits sodium and chloride ions reabsorption. So these are the three hormones, or the hormones from the heart, and the JGA and the hypothalamus control the function of the kidney. Micturition. Urine is produced and drained continuously by the nephron into the renal pelvis. From here it is carried down to the uterus and then to the urinary bladder. The bladder serves to store the urine temporarily till the voluntary signal is received from the central nervous system. तो क्या होता है, एज वी आर नाउ नोइंग कि किडनी में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है और फिर यूरिन बनता है और वहाँ से यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन इकट्ठा होता है। तो जो यूरिनरी ब्लैडर के वॉल हैं उसमें नर्व्स एंडिंग होती हैं, सेंसरी नर्व्स एंडिंग, वो CNS को भेजती हैं मैसेज। जब हाफ फिल हो जाता है हमारा ब्लैडर तब जाके CNS ऑर्डर करता है जस्ट टू एम्प्टी आउट द यूरिनरी ब्लैडर। तो द रिलीज or the process of release of urine is called micturition, and the neural mechanism that causes it is called as micturition reflex. तो दो चीज़ें यहाँ पे हैं, इसको जाने आप लोग, micturiation and micturition reflex. The process of release of urine is called micturition and the neural mechanism that controls it is called micturition reflex. यूरिन के बारे में हम देख लेते हैं। An adult man normally passes 1 to 1.5 liter of urine per day. Urine consists of 95% of water, 2% of salt, 2.6% of urea, and 3% uric acid, and traces of ammonia and creatinine. Urine is of pale yellow color due to pigment of urochrome, which is produced by breakdown of hemoglobin. And unpleasant smell comes out of urine due to breakdown of ammonia. तो ये है यूरिन। फिर यूरिन हमारे बॉडी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है जिसके एनालिसिस से कई सारे क्लिनिकल डायग्नोसिस कर सकते हैं और अपने बॉडी के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को हम डिटेक्ट आउट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि अगर ग्लूकोज के ट्रेसेस आ रहे हैं हमारे यूरिन में तो दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ग्लाइकोस्यूरिया। अगर कीटोन के ट्रेसेस मिल रहे हैं तो कीटोन्यूरिया है उस आदमी को। देन डायबिटीज़ अगर किसी को है, डायबिटीज़ मेल्टस, तो वो भी यूरिन के टेस्ट से हम जान सकते हैं। तो इस तरह से वी कैन से दैट यूरिन इज़ अ इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ body through which analysis we can detect out various disease of the body. Now role of the other organs, तो किडनी तो हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है ही है एक्सक्रीशन के लिए। इसके अलावा और भी बॉडी पार्ट्स हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो उसमें पहला है लंग्स। तो लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 जिसको बोलते हैं, एंड वाटर आर डिस्पोज्ड आउट ऑफ द बॉडी। दूसरा लीवर है, तो लीवर से जो हीमोग्लोबिन ब्रेक आउट होता है बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट होता है। स्किन से बहुत सारे जो सॉल्ट्स हैं थ्रू द स्वेट ग्लैंड्स ये बाहर निकलते हैं। इंटेस्टाइन से हैवी मेटल्स या ड्रग्स वो बाहर निकलते हैं। देन सलाइवरी ग्लैंड से जो ड्रग्स कुछ किसी ने लिया है वो सब बाहर निकलते हैं। तो these organs help in excretion also. Now disorders of the excretory system. पहला है यूरेमिया, तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड। दूसरा है किडनी फेलियर, पार्शियल और टोटल इनएबिलिटी ऑफ द किडनी टू कैरी आउट द एक्सक्रीशन प्रोसेस is called as kidney failure.
renal calculi है, it is a formation of stone or insoluble mass of crystallized salt within the kidney. Glomerulonephritis है, it is the inflammation of glomerular of the kidney. So these are the different disorders of the excretory system. Artificial kidney क्या है? Artificial kidney is a machine that is used to filter the blood to remove urea and other nitrogen in a waste of a person whose kidneys are damaged. And this process is called hemodialysis and the machine is called hemodialyzer. Hemodialyzer कैसे काम करता है? तो hemodialyzer वर्क करता है डायलिसिस के प्रिंसिपल पे कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस दो सॉल्यूट्स होते हैं और दोनों सॉल्यूट्स के कंसंट्रेशन से हमारा ब्लड या जो पेशेंट का ब्लड है वो प्यूरिफाई किया जाता है. इसमें करते क्या है? द ब्लड ऑफ पेशेंट इज पम्प्ड फ्रॉम वन ऑफ हिज आर्टरीज इनटू द डायलाइजर मशीन आफ्टर कूलिंग इट एट द 0 डिग्री एंड मिक्सिंग विद द एंटीकोगुलेंट हेपरिन. तो पेशेंट के एक आर्टरी से ब्लड ले लेते हैं, उस ब्लड में हेपरिन मिलाते हैं जो कि एंटीकोगुलेंट की तरह काम करे और उसको 0 डिग्री पे कूल करते हैं और तब डायलाइजर मशीन में उसको ले जाते हैं. हेमोडायलाइजर इज अ सेलोफेन ट्यूब सस्पेंडेड इन द डायलाइजिंग यूनिट ऑफ द सेम कंपोजिशन ऑफ दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट. और ये दोनों के क्रॉस जब रहता है तो वहाँ पे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में वो चला जाएगा फ्लूइड में और दिस हाउ द ब्लड इज़ फिल्टर्ड. और जब ब्लड फिल्टर हो जाएगा तो उसको उसमें एंटी हेपरिन मिला देंगे और ब्लड को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे ले आएंगे और तब उसको वेन से पेशेंट के बॉडी में पंप कर देंगे. तो दिस हाउ हेमोडायलाइजर मशीन वर्क्स. Kidney transplantation, grafting of kidney from a healthy donor to restore kidney function in a patient of kidney failure is called kidney transplantation or renal transplantation. That's all in today's video and this chapter is finished now. Thanks a lot for watching my video.